Hello everyone. We have seen the phase contrast microscope. We have already learned the bright field microscope, and now here we are going to see the one more type of microscope, which is fluorescence microscope. So what is fluorescence microscope, why it is used, we need to see. So this microscope, before learning about the main thing of the microscope, we are going to see who invented this microscope. Every thing is been every science term is been invented by some scientist. So this term was coined, or this thing was invented by Mr. Sir George G. Stokes, who has described this microscope in year 1852. Now, this microscope was devised in the early part of 20th century by Mr. August Kohler, Carl Richard, and the Heinrich Lehmann. Not so important to remember, but still for your knowledge, these were the scientists who has contributed the discovery of the fluorescence microscope, and it is very important type of microscope which is used. So what is the fluorescence microscope principle? So many substances has that property that they absorb the light, we all know, and however there are the some of them which absorb the light of the particular wavelength of the energy and emit the longer wavelength of the light. Okay, so some substances are there, they are particularly called as the fluorescence substances. Now what is this fluorescence substances? ये जो term है वो first जो है observe की गई थी in the jellyfish, I think. जेलीफिश में क्या था कि वो जो है वाटर के अंडर ब्राइट कलर की दिखती है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो यूवी लाइट को एब्सॉर्ब करके एक डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को इमिट करती थी, उसके वजह से इट यूज टू अपियर लाइक अ ब्राइट कलर. ओके, सो दिस वाज द थिंग. उसके वजह से ये टर्म कॉइन किया था कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो एक वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करके दूसरे वेवलेंथ की लाइट इमिट करती है. So उन्हीं we called as the fluorescence. This phenomenon is the fluorescence. Now यही phenomenon was used in the fluorescence microscope. Now what exactly this fluorescence microscope does? तो ये जो स्पेसिमन जो हमें विजुअलाइज करना है, वी कोट इट विद द फ्लोरोफोर और फ्लोरोसेंट डाइज. तो वो फ्लोरोसेंट डाइज क्या करती है? वो क्या करती है, एक लाइट की एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब करती है. हम जो भी लाइट पास करती है वो उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, वो एक्साइट हो जाती है, उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं. और और वो स्टेट वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनमें वो एबिलिटी नहीं कि वो ज़्यादा देर तक उस स्टेट को मेंटेन करे. तो इसकी वजह से वो एक डिफरेंट लाइट इमिट करती है जिसकी वेवलेंथ जो एब्सॉर्ब की गई लाइट है उससे ज़्यादा होती है और एनर्जी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो यही फिनोमिनॉन जो है, मतलब एक वेवलेंथ की लाइट एनर्जी की लाइट एब्सॉर्ब करना, और दूसरी वेवलेंथ जिसकी एनर्जी जो है वो कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो इमिट करना, इज़ नोन एज द फ्लोरोसेंस. और उसके लिए वी यूज़ सम फ्लोरोसेंस डाई. तो फ्लोरोसेंस डाई में क्या होता है, फ्लोरोफोर होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसमें दैट कैन री इमिट द लाइट अपॉन द एक्साइटेशन. नाउ फ्लोरोफोर जो होते हैं दे हैव दैट लाइक उसका केमिकल स्ट्रक्चर, इट हैज़ सम काइंड ऑफ combined aromatic groups or the plane or the cyclic molecules with the several psi bonds, डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें, aromatic group हो सकते हैं, cyclic molecules होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है. जो भी माइक्रो बायोलॉजिकल स्पेसिमंस है जिनको हमें ऑब्जर्व करना है, वी नीड टू फर्स्ट कोट देम विद द फ्लोरोसेंट डाइज. नाउ these fluorescent components which we use are oromine O or acridine orange or fluorescein. They are all the dyes which we use to coat the specimen. And the light source here we use is the mercury vapor lamps, or they may be xenon lamps, और लेज़र भी यूज़ किया जाता है, एलईडीज़ भी यूज़ की जाती, जो हाई पावर की एलईडीज़ होती है वो यूज़ की जाती. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस माइक्रोस्कोप वर्क, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू सी हियर. सो आई विल एक्सप्लेन यू इन डायग्राम. सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू जूम इट. सो यहाँ पे क्या होता है,
इस डायग्राम में यू कैन सी द स्ट्रक्चर क्लियरली, तो आई कैन एक्सप्लेन। तो जो मैंने आपको बताया कि लाइट सोर्स जो है, अभी वो लाइट सोर्स ऐसे जो जनरली माइक्रोस्कोप में बिलो द स्पेसिमन होती है, बट यहाँ पे इट इज़ लाइक अबाउट, इट इज़ प्रेजेंट इन द डिफरेंट एंगल। तो यहाँ पे लाइट सोर्स प्लेस की गई है। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है, बॉडी ट्यूब का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये होती है बॉडी ट्यूब। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। नाउ यहाँ पे वाइट लाइट पास होती है फ्रॉम द लाइट सोर्स, वो जेनॉन बल्ब भी हो सकता है, मर्क्यूरी आर्क बल्ब भी हो सकता है, तो उससे वो लाइट वेव पास होती है। यहाँ पे होता है एक्साइटेशन फिल्टर। अब वो क्या करता है, आपको पता है वाइट वे में वाइट लाइट जो होती है उसमें डिफरेंट लाइट्स होती है, डिफरेंट रेज ऑफ लाइट होती है, लाइक ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। विबग्योर आपको याद होगा, विबग्योर हम रेनबो को डिफाइन करते हैं, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू। विबग्योर जो है होती है, उतने सारे कलर्स होते हैं इसमें। तो उसमें से जो ब्लू कलर की लाइट है, बस उसी को ये जो फिल्टर है ना, एक्साइटेशन फिल्टर उसको बोलते हैं, इट हैज़ दैट एबिलिटी कि वो बस ब्लू कलर की लाइट जो है वो पास करेगा, बाकी लाइट को पास नहीं करेगा। वाइट लाइट का बस ब्लू कलर का पार्ट है वही पास करेगा। नाउ यहाँ पे होती है डाइक्रोमेटिक मिरर। अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ट्यूब जैसे, अभी अगर ये यहाँ से भी लाइट आई तो वो यहाँ से टकरा के फिर पता नहीं कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे भी जा सकती, कहीं पे भी जा सकती, तो इसके वजह से वो अवॉइड हो, इसलिए वी हैव द दिस फिल्टर विच इज़ डाइक्रोमेटिक मिरर हियर। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये बस ब्लू लाइट जो है इसी को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कोई भी कलर की लाइट हो उसको पास करता है, बस ब्लू लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, ब्लू कलर की लाइट, रिमेंबर दिस पॉइंट, डाइक्रोमेटिक मिरर क्या करता है, वो बस ब्लू लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, पास होने नहीं देता, बाकी सब कोई भी पास करो आप, वो पास हो जाएगी इजीली। नाउ ये क्या करेगा फिर, अभी ये ब्लू लाइट है मैंने आपको बोला, तो वो स्ट्रेट जाएगी नीचे रिफ्लेक्ट होके। ओके, सो ये स्ट्रेट, अभी वो एंगल ही ऐसा है डाइक्रोमेटिक का, वो रिफ्लेक्ट होके नीचे ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। सो ये सॉरी सो ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, इट विल फॉल ऑन द स्पेसिमन। अभी ये हमारी स्लाइड है जिसपे वी हैव द ऑर्गेनिज्म और स्पेसिमन और सेल, जिसको हमने कोट किया है विद द फ्लोरोक्रोम। ओके, नॉट क्रोम, सॉरी, फ्लोरोफोर। ओके, या फ्लोरोसन डाई से हमने कोट किया है उसको। तो ये डाइस क्या करेगी फिर, ये एक लाइट की वेवलेंथ एब्सॉर्ब करके दूसरी वेवलेंथ, लोअर लाइक हायर वेवलेंथ की लाइट इमिट करती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ये क्या करेगी फिर, ये ब्लू लाइट की वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगी, जो बहुत कम एज कम्पेयर टू नेक्स्ट वेवलेंथ थोड़ी कम है। ओके, सो ये ब्लू लाइट एब्सॉर्ब करेगी, थोड़ी एक्साइट हो जाएगी ये फ्लोरोसेंट डाइज, और वो क्या करेगी फिर, जिस भी स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो थोड़ी हायर वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगी। आपको विबग्योर टर्म याद है, तो विबग्योर में बी के बाद क्या आता है, जी। विबग्योर, बी के बाद जी आता है, मतलब जी की वेवलेंथ ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू ब्लू। तो जी मतलब क्या, ग्रीन। तो ये क्या करेगी फिर, ग्रीन लाइट इमिट करेगी, ब्लू को क्या ब्लूइश ग्रीन लाइट इमिट करेगी, मतलब ब्लू की एब्सॉर्ब करेगी और ग्रीन में कन्वर्ट होगी और ग्रीन कलर का लाइट इमिट करेगी यहाँ पे। ओके, तो ये ग्रीन कलर की लाइट जो है वो यहाँ से पास होगी, आई विल शो इट बाय द डिफरेंट कलर। सो ये यहाँ पे पास होगी। ओके, नॉट दिस, सो दिस विल पास फ्रॉम हियर और वो ऊपर जाएगी। अभी ये भी जाएगी फिर से कहाँ, डाइक्रोमेटिक मिरर के पास टकराएगी। अब मैंने आपको डाइक्रोमेटिक मिरर का क्या बताया था कि वो क्या करता है, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कोई भी लाइट, कलर की लाइट हो, वो उसको जाने देता है, पास करने देता है। तो अभी ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि ये ब्लूइश ग्रीन लाइट है, तो इसकी जो भी ब्लू पार्ट है ना, ब्लू कलर है, वो पास नहीं होगा, उसका बस ग्रीन कलर पास होगा इसमें से। ओके, यहाँ पे जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, सो हियर अगेन इज वन मोर फिल्टर। तो ग्रीन गया, तो यहाँ पे भी देर इज अ बैरियर फिल्टर जो अगेन और इंटेंसिफाई करेगा ग्रीन लाइट को। अगेन अगर कुछ ब्लू पार्ट बचा होगा तो
को भी वो रिफ्लेक्ट करेगा और बस ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन कलर को पास करेगा, और ये ग्रीन कलर हमारी आईज नोटिस करेगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द थिंग कि ग्रीन कलर का फिर हमें वो जहाँ पे भी फ्लोरोसेंट डाई है, अगर हमारा स्पेसिमन है स्लाइड पे, उसको हमने स्टेन किया है ग्रीन कलर से, तो वो स्पेसिमन उतना हमें दिखेगा अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड या फिर कलरलेस बैकग्राउंड। ओके, तो यही हमें ग्रीन कलर का दिखेगा एंड वी कैन गेट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमन। यही इसका फंक्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द दिस माइक्रोस्कोप, ये कैसे वर्क करता है। पहले तो वाइट लाइट आएगी पूरी की पूरी, वो फिल्टर आउट होगी बाय यूजिंग द एक्साइटेशन फिल्टर, उसमें से बस ब्लू रे ही पास होंगी, बाकी कलर नहीं पास होंगे। ब्लू पार्ट फिर डायक्रोमेटिक से अगेन रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि डायक्रोमेटिक बस ब्लू को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी को पास होने देती है। तो ब्लू पार्ट जाएगा, फिर स्पेसिमन से टकराएगा, स्पेसिमन उसको एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि उसमें फ्लोरोसेंट डाई है, तो वो दूसरे वेवलेंथ की, थोड़ी हायर वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा। हायर वेवलेंथ ब्लू के बाद आता है ग्रीन, तो वो ग्रीन को इमिट करेगा। ग्रीन जो पार्ट है वो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ वन मोर फिल्टर विच इज़ अगेन वो डायक्रोमेटिक से टकराएगा। डायक्रोमेटिक क्या करता है, वो ग्रीन को पास होने देगा, ब्लू को नहीं होने देगा, तो फिर से ग्रीन पार्ट पास होगा और वो फिर से बैरियर में और ज़्यादा अच्छे से फिल्टर होगा, और बस जो ग्रीन रेज है वही हमें, या फ्लोरोसेंट रेज है वो हमें दिखेगी अंडर द माइक्रोस्कोप, हमें स्पेसिमन ग्रीन कलर का दिखेगा। दिस इज़ द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। अभी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, एप्लीकेशन कहे तो इट इज़ यूज्ड like it is used to identify the structure in the fixed or the live biological samples। मतलब अगेन लाइव सैम्पल्स में भी हम देख सकते हैं, बिकॉज फ्लोरोसेंट डाइज इतनी हार्मफुल नहीं होती है। देन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की वजह से वी कैन यूज़ डू द मल्टी कलर स्टेनिंग, मतलब हमें जो है डिफरेंट कलर के लाइट्स हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फॉर द ब्लू। ओके, सो डिफरेंट स्टेन्स यूज़ कर सकते हैं, उससे डाइज यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें मल्टी कलर जो है वो दिख सकते हैं। लाइक सेल वॉल को हम डिफरेंट कलर का स्टेन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़, और सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट वगैरह हम कर सकते हैं। ओके, देन एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर स्टडिंग द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द लिविंग सेल्स। मतलब कि लिविंग सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जो चेंज होती है, वो हम चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। द सेंसिटिविटी इज़ हाई एंड it can be enough to detect the 50 molecules per cubic micrometer। you can imagine कितने ज़्यादा सेंसिटिविटी है, मतलब 50 molecules हम एक स्लाइड में एक माइक्रोमीटर में डिटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन। देन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स can now be stained with the different colors and allowing the multiple types of the molecules to be tracked simultaneously। मतलब हमें different molecules को देखने के लिए different डिफरेंट स्टेनिंग नहीं यूज़ करनी पड़ती, हम एक ही बारी में हम जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। लिमिटेशंस इज़ देयर, फ्लोरोसेंस जो है वो एबिलिटी लूज करते हैं एज दे इल्यूमिनेट इन द प्रोसेस कॉल्ड द फोटो ब्लीचिंग। It occurs as the fluorescent molecule accumulate the chemical damage from the electrons excited during the fluorescence। कभी कभी क्या होता है, वो एक प्रोसेस होती है फोटो ब्लीचिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लोरोसेंस हुए मॉलिक्यूल्स या फ्लोरोसेंट डाई के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अक्यूमुलेट हो जाते हैं, केमिकल डैमेज जो भी डैमेज हो जाता है एज आई टोल्ड की एक्साइटेशन की वजह से जो है सेल एक्साइट ज़्यादा देर तक नहीं रहती, बट उस एक्साइटेशन की वजह से कुछ डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से हमें फ्लोरोसेंट का एक्यूमुलेशन हो जाता है डाई का, तो हमें स्ट्रक्चर कभी कभी प्रॉपर नहीं दिखते। देन सेल्स या तो फिर राइट स्ट्रक्चर नहीं दिखते। सेल्स आर ससेप्टिबल टू द फोटोटॉक्सिसिटी पर्टिकुलरली विद द शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। अगेन उनको टॉक्सिसिटी भी हो सकती, दैट इज़ दिस शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो टॉक्सिक भी होती है उनके लिए। अनलाइक द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक, दिस ओनली अलाउज द ऑब्जर्वेशन फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स विच हैव बीन लेबल्ड विद द मतलब जिनको हम ये नहीं कह सकते कि सबको लेबल हुई है, जो जो लेबल हुआ है वही विजुअलाइज होते हैं, सब नहीं विजुअलाइज होते। अगर गलती से लेबलिंग नहीं हुआ तो वो स्ट्रक्चर दिख नहीं सकता माइक्रोस्कोप के अंदर। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज, वेरी रेयर डिसएडवांटेज। सो दिस इज अबाउट द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट।
and I have already passed the notes, so check them on. Thank you.